ذرا ایک ایسے کسان کا تصور کریں جو 6 ماہ کی کڑی دھوپ میں مسلسل محنت کرتا ہے، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی مطلب اپنا سب کچھ ایک زمین کے ٹکڑے میں ملا دیتا ہے اور اور پھر انتظار کرتا ہے کہ فصل تیار ہوگی۔ بالکل، ہاں ہاں بالکل۔ لیکن جب فصل کٹنے کا وقت آئے تو اسے پتا چلے کہ جو بیج اس نے بویا تھا وہ تو اندر سے پہلے دن ہی مر چکا تھا، یعنی اس میں تو جنیاتی طور پر لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بدقسمتی سے آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم پاکستان کی سب سے بڑی نقد آور فصل کے ایک ایسے خاموش لیکن خوفناک بحران پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف کھیتوں تک محدود نہیں ہے، یہ ہماری پوری معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اور آج کی ہماری یہ گفتگو ان ٹھوس حقائق اور سائنسی شواہد پر مبنی ہے جو ہم تک پہنچے ہیں۔ تو چلیں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کپاس کی پیداوار کا بحران اور اس کا حل۔ دیکھیں، یہ JQ گلوبل ایگریکلچر کی زراعت کی خبروں کا ایک سلسلہ ہے۔ بالکل، اور یہ جو تقریب یا سیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا انعقاد خاص طور پر سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام میں کیا گیا ہے، جو کہ زراعت کے حوالے سے ایک بہت مستند ادارہ ہے۔ ہاں، ACU ٹنڈو جام، اور اس میں ماہر زراعت محمد جاوید قمر صاحب نے اپنا تفصیلی خیالات پیش کیے ہیں۔ دراصل یہ سارا سیشن ایک ہنگامی حکمت عملی پر مبنی ہے، مطلب ایک ارجنٹ ایکشن پلان ہے۔ ارجنٹ ایکشن پلان اس لیے کیونکہ صورتحال واقعی قابو سے باہر ہو رہی ہے، ہم محض باتیں نہیں کر سکتے اب۔ تو اسی ہنگامی حکمت عملی کے حوالے سے میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والی اس فصل کو اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میرا مطلب ہے محمد جاوید قمر صاحب کو ایک ہنگامی حالت کا اعلان کیوں کرنا پڑا؟ دیکھیں، اس کی وجوہات بہت گہری ہیں اور یہی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کپاس کا موجودہ بحران۔ تو جیسے میں کہہ رہی تھی، کپاس تو ہماری سب سے بڑی کیش کراپ ہے، یعنی نقداور فصل، لیکن اس وقت اسے پیداوار میں شدید ترین کمی کا سامنا ہے۔ بالکل، اور پیداوار میں یہ جو کمی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے کاشتکاروں کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ بیچارے تو معاشی طور پر دب کر رہ گئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کسان کپاس چھوڑ کر دوسری فصلوں جیسے کماد اور مکئی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں نا۔ 100% درست۔ دیکھیں، جب کسان اپنی روایتی اور سب سے زیادہ منافع بخش فصل کو چھوڑ کر کسی دوسری فصل کی طرف بھاگنے لگے تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ مسلسل خسارے نے اس کا اعتماد مکمل طور پر توڑ دیا ہے۔ واقعی، مطلب کپاس کی فصل ایک طرح سے بچے کی طرح پالی جاتی ہے نا؟ بالکل، یہ انتہائی حساس فصل ہے۔ جب ایک کسان اپنی لاگت جو اس نے انویسٹ کیا ہے وہ بھی پوری ہوتی نہیں دیکھتا تو اس کی معاشی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے اپنے خاندان کو فاقوں سے بچانا ہے تو وہ مجبوراً کماد یا مکئی کا انتخاب کرتا ہے، جہاں اسے لگتا ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ مالی تحفظ تو مل جائے گا۔ یہ بقا کی جنگ واقعی تشویشناک ہے۔ تو چلیں اس بحران کی وجوہات کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے موسمیاتی تبدیلیاں۔ یہ سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ ہے جو تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے گہرے اثرات ہماری زراعت پر پڑ رہے ہیں۔ یعنی وہ جو غیر متوقع موسم ہو گیا ہے، بے وقت کی بارشیں ہو رہی ہیں اور اچانک ہیٹ ویوز آ رہی ہیں جن سے فصل کی شدید تباہی ہو رہی ہے۔ جی، یہ جو گرمی کی شدید لہریں ہیں یہ پودے کے لیے قاتل ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں میں تھوڑی سی الجھن کا شکار ہوں۔ میرا مطلب ہے موسم تو ہمیشہ سے بدلتا رہا ہے، ہمارے کسان بھائی تو صدیوں سے موسموں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس بار ایسا کیا مختلف ہے کہ پوری کی پوری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے موسموں نے اپنا کیلنڈر ہی بھلا دیا ہے۔ کیلنڈر کا بھلا دینا، یہ بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ فصلیں ایک مخصوص اور متوقع موسمیاتی سائیکل کے عادی ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی ان کا ایک اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے؟ بالکل، کپاس کے پودے کو جب پھول آتے ہیں اور جب اس پر ٹنڈے بننے کا عمل شروع ہوتا ہے نا تو اسے ایک خاص حد تک درجہ حرارت اور نمی درکار ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب اچانک ایک غیر متوقع ہیٹ ویو آتی ہے اور درجہ حرارت اس حد سے تجاوز کر جاتا ہے جو پودا برداشت کر سکے تو پودا شدید دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس شدید دباؤ میں، یا جسے ہم ہیٹ سٹریس کہتے ہیں، اس میں کیا پودا مر جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی کیمیائی تبدیلی آتی ہے؟ پودا فوری طور پر مرتا نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک سروائیول موڈ یا بقا کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ جب اس پر ہیٹ سٹریس پڑتا ہے تو اس کا قدرتی دفاعی نظام اسے سگنل دیتا ہے کہ بھئی اپنی توانائی بچاؤ۔ تو وہ توانائی کیسے بچاتا ہے؟ اس کے نتیجے میں پودا اپنے ہی پھول اور کچے ٹینڈے زمین پر گرا دیتا ہے۔ وہ اپنے پھل کو اس لیے گرا دیتا ہے تاکہ وہ خود کو زندہ رکھ سکے۔ کیا بات کر رہے ہیں، یعنی پودا اپنا ہی پھل گرا دیتا ہے؟ بالکل، اور اسی دوران ہم لوگ بے وقت بارشیں بھی ہو جائیں تو وہ ضرورت سے زیادہ نمی، فنگس اور مختلف بیماریوں کے لیے ایک آئیڈیل نرسری بنا دیتی ہے۔
ये वो मौसमियाती अवामिल हैं जो किसान की महीनों की मेहनत को मतलब चंद दिनों में सिफर कर देते हैं। ये तो इंतहाई बेबसी की सूरत हाल है। खैर, मौसमियाती तब्दीलियां तो किसान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो जो बीज जमीन में बो रहा है उसका तो वो खुद इंतखाब करता है ना। सही बात है, और यही हमारा अगला पॉइंट भी है। जी, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है 2 नंबर और गैर मेयारी बीज। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में 2 नंबर बीज की भरमार है। जाली और गैर तस्दीक शुदा बीज सरेआम फरोख्त हो रहा है। और यही दरअसल इस पूरे बहरान की सबसे बड़ी और बुनियादी जड़ है। बीजों में जेनेटिक खालिसपन या जिसे हम जेनेटिक प्योरिटी कहते हैं, उसका मुकम्मल फुकदान है। मैं खासतौर पर उन किसान भाइयों के लिए जो मोबाइल के जरिए दूर दराज इलाकों से ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये समझना चाहती हूँ कि बज़ाहिर तो हर बीज एक जैसा ही लगता है, तो ये डीएनए और जेनियाती खालिसपन का क्या चक्कर है? ये बहुत अहम सवाल है, खासतौर पर मोबाइल फार्मर्स के लिए जो मंडियों में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, बज़ाहिर तो असली और जाली बीज में कोई फर्क नजर नहीं आता, दोनों एक जैसे लगते हैं। हाँ, रंग और साइज तो वैसा ही होता है। बिल्कुल, लेकिन जब कोई तस्दीक शुदा ज़राई इदारा बीज तैयार करता है ना, तो साइंसदान उसके अंदर ऐसी जेनेटिक खूबियां शामिल करते हैं जो उसे उस इलाके की शदीद गर्मी, मौसमी शिद्दत और बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाती हैं। अच्छा, यानी उसके अंदर एक तरह का डिफेंस सिस्टम होता है। 100%। लेकिन जब किसान मार्केट से गैर मुस्तनद या 2 नंबर बीज खरीदता है, तो उस बीज के अंदर वो कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिरे से मौजूद ही नहीं होती। वो जीनियाती तौर पर बिल्कुल खोखला होता है। क्या हम उसकी मिसाल यूं ले सकते हैं कि आप एक ऐसी इमारत खड़ी कर रहे हैं जिसकी बुनियादों में आपने सीमेंट की जगह सिर्फ रेत भर दी है? ऊपर से इमारत तो बड़ी शानदार नजर आएगी, लेकिन हल्का सा मौसमी जलजला आया या हवा का तेज झोंका आया तो सब जमीन बोस हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मिसाल दी आपने। जब आप कमजोर जीनियात वाला बीज जमीन में डालते हैं ना, तो आपकी बाकी तमाम मेहनत बेमाने होकर रह जाती है। अब जितनी मर्जी अच्छी खाद डालें, वक्त पर पानी दें, अगर बीज की अंदरूनी मुदाफ़ियत ही सिफर है, तो मौसमी शिद्दत की पहली लहर या कीड़े का पहला हमला ही इस पौधे को खत्म कर देगा। यानी 2 नंबर माफिया ने किसानों को ऐसा बीज बेचा है जो अंदर से बिल्कुल खोखला है। जी, और उसका खमियाजा किसान भुगत रहे हैं। अच्छा, अब फर्ज करें एक किसान को पता चल गया है कि उसका पौधा कमजोर है और उस पर कीड़ों का हमला हो रहा है। वो क्या करेगा? वो मार्केट जाएगा और दवाइयां ले आएगा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है जाली अद्वियात और खाद। और यहाँ से एक और तबाही का आगाज होता है। बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में जाली ज़रई अद्वियात की मौजूदगी एक बहुत बड़ा मसला है और साथ ही खाद का गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़रई ज़मीन की सेहत यानी सॉइल हेल्थ बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि इन सब चीजों के इस्तेमाल के बावजूद फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों का तदारुक भी नहीं हो रहा। हम मुकम्मल नाकाम हो रहे हैं। ये मुझे समझाएं कि क्या हम अपनी जमीन और फसल को बचाने की कोशिश में उल्टा उसे जहर दे रहे हैं? बदकिस्मती से हकीकत यही है, और ये एक बहुत भयानक सूरत हाल है। देखिए, जब एक गैर मेयारी या जाली कीड़े मार दवा यानी पेस्टिसाइड फसल पर स्प्रे की जाती है ना, तो वो नुकसानदेह कीड़ों को तो शायद ना मार सके जिनके लिए वो बनी है, लेकिन वो किसी और चीज को मार देती है। जी, वो खेत में मौजूद दोस्त कीड़ों और जमीन के अंदर मौजूद फायदेमंद माइक्रोब्स को जरूर मार देती है। ये वो माइक्रोब्स हैं जो जमीन की जरखेजी का बायस बनते हैं। और इसके साथ साथ खाद का गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल एक अलग तबाही मचा रहा है। खाद तो पौधे को ताकत देने के लिए होती है ना, मतलब ज्यादा खाद डालना तो अच्छी बात होनी चाहिए, इसमें क्या खराबी है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन खुराक का फर्क समझना जरूरी है। हमारे यहाँ नाइट्रोजन वाली खाद का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उससे क्या होता है? इससे होता यह है कि पौधा तेजी से बढ़ता तो जरूर है, वो हरा भरा भी बहुत नजर आता है, लेकिन उसकी जाहिरी साख्त इंतहाई नर्म और रसीली हो जाती है। ओह, नरम साख्त। बिल्कुल, और ये नर्म साख्त सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी जैसे नुकसानदा कीड़ों के लिए एक खुली दावत होती है। इन कीड़ों के लिए इस नर्म पौधे पर हमला करना और इसका रस चूसना बहुत आसान हो जाता है। यानी हम खुद अपने पैसों से फसल को नर्म बनाकर कीड़ों की खुराक बना रहे हैं और जमीन को बंजर कर रहे हैं। ये तो एक पूरा शैतानी चक्कर बन चुका है। बिल्कुल, एक चक्कर है जिसमें किसान बुरी तरह फिस गया है। अब जरा हम इस खेल के मुआशी पहलू पर आते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है महंगी ज़राअत। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज़राअत की लागत या इनपुट कॉस्ट्स आसमान से बातें कर रही हैं। जी, ईंधन यानी फ्यूल की कीमतें तो आपके सामने ही हैं। हाँ, और इंतहाई महंगी बिजली भी। इन तमाम अखराजात के बायस किसानों का मुआशी दिवालियापन हो रहा है। मुझे ये बताएं कि एक आम काश्तकार जो चंद एकड़ का मालिक है, उसके लिए ये माशी हकाइक कैसे काम करते हैं? इस माशी हकीकत को समझना इंतहाई जरूरी है। हमारे अक्सर छोटे और दरमियाने दर्जे के काश्तकारों के पास नहरी पानी की मुस्तकिल फराहमी नहीं होती। उन्हें ट्यूबवेल के पानी पर इन्हिसार करना पड़ता है। सही।
और ट्यूबवेल चलता है बिजली या डीजल पर। बिल्कुल। अब जरा हिसाब लगाएं, डीजल और बिजली की मौजूदा कीमतों पर एक ट्यूबवेल को चंद घंटे चलाने का खर्चा ही इस कदर ज्यादा बन जाता है कि वो किसान की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाता है। कपास को मुख्तलिफ मराहिल पर मुसलसल निगहदाश्त और पानी की जरूरत होती है। तो वो क्या करे? वो मजबूर हो जाता है, फसल सूखने लगती है। यही वो मुआशी तबाही है जिसने छोटे काश्तकारों को दिवालिया करके उन्हें कमाद जैसी फसलों की तरफ धकेल दिया है। क्योंकि कमाद एक बार लग जाए तो वो कपास की तरह रोजमर्रा की महंगी मैनेजमेंट का मोहताज नहीं होता। यानी वो एक तरह से अपनी जान छुड़ा रहा है। और इस मजबूरी में मजीद इजाफा हमारी अगली वजह करती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है फसल की गैर मुस्तहकम कीमत। ये एक और बहुत बड़ा मसला है जिसने किसानों का इस्तेहसाल किया है। देखिए, इमदादी कीमत जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उसका मुकर्रर ना होना किसानों के लिए मुसलसल माली खतरा है। वो मार्केट के इस्तेहसाल का शिकार हो जाते हैं। ये गैर मुस्तहकम कीमतें किसानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रही हैं। बिल्कुल। चलें, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि किसान ने मौसमियाती तब्दीलियों, 2 नंबर बीज और महंगी बिजली सब का मुकाबला कर लिया और उसकी फसल तैयार होकर मंडी पहुंच गई। लेकिन वहां पता चलता है कि कोई प्राइस ही फिक्स नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स पूरा महीना मुलाजमत करे लेकिन उसे ये ना बताया जाए कि उसकी तनख्वाह क्या होगी और महीने के आखिर में उसे जो चाहे दे दिया जाए। ये बहुत ही तकलीफदेह हकीकत है। जब कोई इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं होती ना, तो खरीदार और मिडलमैन किसान की मजबूरी का भरपूर फायदा उठाते हैं। जाहिरी बात है, किसान अपनी तैयार फसल वापस घर तो लेकर नहीं जा सकता ना। बिल्कुल नहीं ले जा सकता। तो वो मिडलमैन की बताई हुई इंतहाई कम कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर हो जाता है। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल का ये आलम किसान को नफसियाती और माशी तौर पर मुकम्मल तोड़ देता है। अगर हुकूमत की तरफ से कोई कीमत मुकर्रर हो तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर हुकूमत की तरफ से एक आमदनी कीमत मुकर्रर होना तो किसान को एक तसल्ली होती है कि चाहे जो हो जाए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उसकी मेहनत एक खास कीमत पर जरूर खरीदी जाएगी। इसके बगैर किसान अंधेरे में तीर चला रहा है। और जहां हम हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हमारी आखिरी बड़ी वजह भी इसी से जुड़ी है। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मुस्तकिल पॉलिसी का फुकदान। जी, पॉलिसियों का तजाद एक बहुत पुराना मसला है हमारे ज़री शोबे का। हमारे पास जो हकायक हैं वो बताते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों में शदीद तजाद और अदम तसलसल पाया जाता है और मुस्तनद ज़री डेटा की शदीद कमी है। साथ ही जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी फुकदान है। इन खामियों के बायस ज़री शोबे को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा है। ज़राअत आजकल कोई तुक्काबाजी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर एक साइंस है। और कोई भी साइंस मुस्तनद डेटा के बगैर तो तरक्की नहीं कर सकती ना। सही बात है। मसला यह है कि हमारी पॉलिसियां रोज बदलती हैं। अगर इदारों के पास ये मुस्तनद डेटा ही नहीं होगा कि किस इलाके में कितने रकबे पर कपास काश्त हुई है, वहाँ की मिट्टी की हालत क्या है या कौन सी बीमारियां हमलावर हैं, तो हम मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जदीद टेक्नोलॉजी भी तो नहीं है ना हमारे पास। जी, जदीद टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजरी और सॉइल टेस्टिंग का वसी पैमाने पर ना होना हमें दुनिया से बहुत पीछे धकेल रहा है। हम अंधेरे में काम कर रहे हैं। ये तमाम वजूहात सुनकर तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम एक बंद गली में फंस चुके हैं। लेकिन जैसा कि हर मसले का हल मौजूद होता है, अब हम उन तजवीज़ की तरफ चलते हैं जो माहिरीन ने पेश की हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका अनवान है डॉक्टर महबूब अली सयाल की राय। डॉक्टर महबूब अली सयाल साहब की राय इस मामले में बहुत अहमियत रखती है। बीजों की फौरी जरूरत है। क्या उन्होंने वाकई इस मसले की जड़ को पकड़ लिया है? बिल्कुल पकड़ लिया है। डॉक्टर महबूब अली सयाल साहब की राय इसलिए बहुत वजन रखती है क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जब तक आप बुनियाद को ठीक नहीं करेंगे, ओपरी लीपा पोती का कोई फायदा नहीं होगा। यानी बीज को ठीक करना सबसे जरूरी है। जी, बीज के मसले को हल किए बगैर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नतीजा सिफर ही रहेगा। नया जैसे इदारे ने महसूस कर लिया है कि जब बीमारी की जड़ ही पौधे की जीनियाती कमजोरी है तो इसका इलाज भी जीनियाती साइंस और लेबोरेटरीज में ही छुपा है। और इसी जीनियाती साइंस के हवाले से एक बहुत ही शानदार पेशरफ्त हमारे सामने आई है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है नया की शानदार तहकीक। ये तहकीक वाकई उम्मीद की एक किरण है। की गई है। इन अक़साम में मौसमियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त करने की भरपूर जीनियाती सलाहियत मौजूद है। यानी ये बीज मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए हैं। बिल्कुल, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज है। लेकिन जरा रुकिए, 41 मुख्तलिफ अक़साम, क्या इतनी ज्यादा अक़साम तैयार करना वाकई जरूरी है? क्या ये एक आम किसान के लिए उलझन का बायस नहीं बनेगा कि वो इतने सारे बीजों में से कौन सा बीज मुंतखब करे? ये बज़ाहिर वाकई एक बड़ी और हैरान कुन तादाद लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी साइंसी मंतिक है। देखें, पाकिस्तान एक मुतनव्वे जोग्राफिया रखने वाला मुल्क है। अच्छा, यानी हर जगह का मौसम अलग है। बिल्कुल। जो दर्जा हरारत और मिट्टी की नौयत सिंध के किसी शदीद गर्म इलाके में है, वो पंजाब के किसी जरखेज इलाके में बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। हर इलाके का अपना एक मुनफरिद माइक्रो क्लाइमेट होता है।
न्या के साइंसदानों ने ये 41 इकसाम इसलिए तैयार की हैं ताकि हर इलाके की मखसूस मौसमियाती ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो मतलब जो बीज सिंध की शदीद गर्मी बर्दाश्त कर सकता है वो वहां के लिए है? जी, वो वहाँ कामयाबी से काश्त होगा। ये किसान को कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे उसकी ज़मीन के मिजाज के ऐन मुताबिक हल देने के लिए किया गया है, ताकि वो क्लाइमेट चेंज का डटकर मुकाबला कर सके। कमाल है। यानी हर इलाके की जमीन और मौसम के लिए एक कस्टमाइज्ड दर्जी का सिला हुआ लिबास। ये तो वाकई एक बेहतरीन हिकमत अमली है। अब हम एक और माहिर की तरफ चलते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सैयद नदीम शाह की तजावीज़। सैयद नदीम शाह साहब का नजरिया भी इस बहरान को हल करने में बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वो सिंध आबादकार बोर्ड के नायब सदर हैं। इनका जोर मेयारी ज़रे मदाखिल यानी क्वालिटी इनपुट्स की यकीनी फराहमी पर है। उनका बुनियादी हदफ किसानों को दूसरी फसलों की तरफ हिजरत करने, जिसे फ्लाइट ऑफ ग्रोअर्स कहा गया है, इससे रोकना है, और उन्होंने एक मरबूत कौमी हिकमत अमली तजवीज़ की है। देखिए, सैयद नदीम शाह साहब चूंकि खुद बराह रास्त जमीन और किसान से जुड़े हैं ना, इसलिए वो किसानों की नब्ज को बखूबी समझते हैं। तो ये फ्लाइट ऑफ ग्रोअर्स को कैसे रोका जाए? ये जो फ्लाइट ऑफ ग्रोअर्स का अमल है, ये दरअसल किसान की एक माशी हिजरत है, और इस हिजरत को रोकने के लिए आप किसान को महज तसल्लियों और बातों से कायल नहीं कर सकते। जब तक आप उसे खालिस बीज और मेयारी दवाइयों की जमानत नहीं देंगे, वो वापस कपास की तरफ नहीं आएगा। उनका हदफ यही है कि किसान को एक महफूज और मुनाफा बख्श माहौल फराहम किया जाए। और इस महफूज माहौल को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी तजवीज़ सामने आई है, उस पर बात करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ब्रीडर्स एडवाइजरी बोर्ड का कयाम। ये एक जबरदस्त और इंतहाई जरूरी कदम है। हुकूमत, कंपनियों और किसानों यानी तमाम स्टेक होल्डर्स की रहनुमाई करेगा। इस बोर्ड का माहिरीन की ज़ेरे निगरानी होना लाजमी है, और इसका काम बीज की पॉलिसियों की कड़ी निगरानी और उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा। बिल्कुल, और यही वो चीज़ है जो मार्केट में एहतसाब लाएगी। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। हमारे मुल्क में पहले ही बहुत से महकमे और कमेटियां मौजूद हैं, तो ये एक नया बोर्ड आखिर ऐसा क्या कर लेगा जो बाकी महकमे नहीं कर सकें? आपका सवाल बिल्कुल बजा है, और अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इस मुजव्वजा बोर्ड में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये बोर्ड खालिसतन मुताल्लिका ज़रई माहिरन और साइंसदानों की ज़ेरे निगरानी काम करेगा, ब्यूरोक्रेट्स की नहीं। अच्छा, यानी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक असर और रसूख नहीं होगा। जी, आज मार्केट में जो 2 नंबर बीज माफिया सरगर्म है, उसकी वजह यही है कि कोई एक ऐसा बाख्तियार और तकनीकी इदारा मौजूद नहीं जो इन पर चेक एंड बैलेंस रख सके। इस बोर्ड की तश्कील से दरअसल इस 2 नंबर बीज माफिया का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। जब माहिरीन की सख्त निगरानी होगी तो कोई भी गैर तस्दीक शुदा बीज मार्केट में आसानी से नहीं आ सकेगा, और यूं किसानों के हुकूक का तहफ्फुज होगा। तो यानी एक ऐसा निगरान इदारा जो वाकई में चीजों को कंट्रोल करे, ये एक जबरदस्त हल है। अब आते हैं एक और अहम पेशरफ्त की तरफ जो कि बैनुल अक़वामी ताउन से जुड़ी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है चीनी माहिरीन का ताउन। चीन ने ज़राअत में जो इनकलाब बर्पा किया है, हमें इससे सीखने की शदीद ज़रूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए चीनी ज़रई माहिरीन जैसे वांग जनचन मकामी इदारों के साथ तावन कर रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उनका इश्तिराक हो रहा है, जिसका मकसद ज्यादा पैदावार वाले जदीद यानी हाई यील्डिंग बीजों की फराहमी और जदीद टेक्नोलॉजी की मकामी मार्केट में मुंतकिली है। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने की क्या खास वजह हो सकती है? देखें, चीन ने कपास की पैदावार में बेपनाह तरक्की की है। उनके पास फी एकड़ बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाली अक़साम और टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर की, तो उनका हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ इश्तिराक इसलिए एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां किसी भी नई टेक्नोलॉजी या बीज को बड़ी तेज़ी के साथ किसानों और मार्केट तक पहुंचाने की सलाहियत रखती हैं। मतलब वो सरकारी महकमों की तरह फाइलों में नहीं उलझे रहते? बिल्कुल, सरकारी महकमों की निस्बत प्राइवेट सेक्टर चीज़ों को जल्दी कमर्शलाइज कर लेता है। उनका नेटवर्क बहुत मजबूत होता है। जदीद साइंसी इल्म और टेक्नोलॉजी की ये मकामी मार्केट में मुंतकिली हमारे ज़रई मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की भरपूर सलाहियत रखती है। वाकई दुनिया की बेहतरीन प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना ही वक्त की अहम ज़रूरत है। अब हम अपने इस मालूमाती और तफसीली जायजे के इख्तितामी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है नतीजा और आइंदा के इक़दामात। और ये इक़दामात हम सब के लिए बहुत अहम है। जी, आज की इस गुफ्तगू से ये वाज़े है कि जदीद काश्तकारी की मालूमात और अपडेट्स हासिल करना कितना ज़रूरी है। ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए एक बाखबर कम्युनिटी का हिस्सा बनना, यानी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना अब वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अख्ज़ किया है। आज के दौर में ज़राअत सिर्फ पुराने तरीक़ों और हल चलाने का नाम नहीं रही। आज का कामयाब किसान वही है जो जदीद तहकीक, मौसम की पेशगोई और मार्केट के रुझानात से मुकम्मल बाखबर हो। हाँ, वरना वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल, जो किसान तन्हा पुराने तरीकों पर चलता रहेगा वो इस तेजी से बदलती हुई क्लाइमेट और मईशत में दिवालिया हो जाएगा। इसलिए एक मरबूत प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी के साथ जुड़ना अब कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है।
व्हाट्सएप के जरिए बराह रास्त रहनुमाई का हुसूल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, मैं आप सब के लिए एक इंतहाई अहम और फिक्री सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर इसी तरह किसान मायूस होकर कपास छोड़ते रहे और खुदा न खास्ता हमारी मुल्क की पैदावार सिफर हो गई, तो क्या हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ बैरूने मुल्क से मंगवाई गई महंगी कपास के सहारे जिंदा रह पाएगी? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। फॉर कंसल्टेंसी व्हाट्सएप +923499841886। सब्सक्राइब टू JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर। मजीद मुशावरत के लिए व्हाट्सएप करें 349984188692 प्लस JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें।